Good morning, friends. Welcome to my 20th lecture on business mathematics. Friends, we are discussing regarding deciles. I have told that deciles is something which divides an entire series into 10 equal parts. So there are 9 deciles: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9. D1 is known as lower decile. D9 is known as upper decile. Both D1 and D9 are known as extreme deciles, and D5 is the middle deciles. We have discussed how to compute deciles in individual series as well as in discrete series in our previous classes. In today's class, we will focus on calculation of decile in case of continuous series. Okay, so in case of continuous series, you know that the x value is given and f value is given, but the x is given in class interval form. What is class interval for? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, like this. So in this case, how you will compute decile, today we will learn that. Okay, so before discussing details on computation in case of continuous series, let me first share my screen with you, then we will discuss in details how to calculate decile in continuous series. Okay, 1 minute. Okay, friends. So today we will discuss regarding deciles in continuous series. So there are two steps to be followed for calculation of decile in continuous series. In case of continuous series, we cannot find out decile directly. First, we have to calculate decile class. Okay, so first we have to calculate decile class, then out of decile class, by applying a formula, we have to calculate decile value. So we have to follow two steps. What are the steps? Step 1, write down. So step 1 is calculate decile class. Calculate decile class. Then we have to follow step 2. Calculate decile value. So we have to follow two steps. First, we have to calculate decile class. Next, we have to calculate decile value. For calculation of decile class, there are formulas. For calculation of decile value, there are formula. So today we will learn what are the formula to calculate decile class first. Next, what are the formula to calculate decile value? These are the two things we have to learn. बेटा हाउ मेनी डेसाइल्स आर देयर? कितना डेसाइल्स है? 9 डेसाइल्स है. तो 9 डेसाइल्स के लिए 9 फॉर्मूला है. समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है डेसाइल फॉर क्लास. नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट डेसाइल वैल्यू. सो डेसाइल क्लास कैसे कैलकुलेट होगा? तो फर्स्ट निकालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ D1 के लिए. तो D1 कैसे कैलकुलेट होगा? D1 कैलकुलेट होगा दो स्टेप्स. पहले हम निकालेंगे D1 क्लास, फिर हम निकालेंगे D1 वैल्यू. तो फर्स्ट देखेंगे हाउ टू कंप्यूट D1 क्लास. लिखो D1 क्लास इज इक्वल टू बेटा n/10th आइटम. आपको पता होगा इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में था n+1/10th आइटम, लेकिन यहां पर फॉर्मूला में +1 नहीं है. D1 क्लास इज इक्वल टू n/10th आइटम. Okay, so n/10th item will be our D1 class, and this n/10th will be found out in CF, found out in first CF, then in corresponding X. इसका मतलब क्या है
जो n/10th आइटम को ढूंढेंगे वो कैसे ढूंढेंगे, पहले हमको CF में ढूंढना पड़ेगा, तो हमको पहले CF कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम कहां पर ढूंढेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग X में। तो X से निकलेगा, लेकिन विद द हेल्प ऑफ व्हाट, CF वी हैव टू कैलकुलेट, इट विल बी फाउंड आउट इन X बट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, CF। CF के हेल्प से X में D1 क्लास कौन सा है उसको निकालेंगे। एक बार D1 क्लास निकल गया, फिर D1 निकालेंगे, सो D1 का वैल्यू निकालेंगे, सो D1 वैल्यू विल बी, क्या होगा D1 का वैल्यू, D1 वैल्यू विल बी, फॉर्मूला इज देयर, L प्लस ओके n/10 माइनस CF बाई F इंटू I। बेटा ये फॉर्मूला अगर समझ में आ गया तो बाकी D1 समझ में आ गया, तो D2, D3, D4, D5 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। तो पहले D1 क्लास निकालेंगे, फिर D1 का वैल्यू निकालेंगे। D1 का वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। तो इसका क्या क्या पार्ट है देखते हैं। फर्स्ट L, व्हाट इज L, L इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ डेसाइल क्लास, जो डेसाइल क्लास है उसका लोअर लिमिट है। समझ में आ रहा है क्या। नेक्स्ट n, n इज इक्वल टू हमको पता है टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, दैट इज इक्वल टू समेशन f। नेक्स्ट CF और F, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज CF, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास एबव डेसाइल क्लास, डेसाइल क्लास का ऊपर वाला क्लास का CF, ये याद रखना है इसमें किसको, एबव। सो ये कौन सा है, डेसाइल क्लास का ऊपर वाला क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं CF। नेक्स्ट आया F, व्हाट इज F, F इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेसाइल क्लास, frequency of the decile class. And another thing is I is equal to what, class interval of decile class। बेटा ये याद रहेगा। तो D1 कैसे निकालेंगे, पहले D1 का क्लास निकालेंगे। D1 क्लास कैसे निकलेगा, n/10th आइटम, n/10th आइटम कहां पर फाइंड आउट करेंगे, CF में फाइंड आउट करेंगे। तो CF में पहले देखेंगे, फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग X वैल्यू विल बी योर व्हाट, विल बी योर D1 क्लास। एक बार D1 क्लास निकल गया, D1 क्लास को यूज करके आप D1 का वैल्यू निकाल सकते हैं। D1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, L प्लस n/10 माइनस CF बाई F इंटू I। Am I clear? So this is the formula of D1। अगर D1 समझ में आ गया, फिर मैं जो जो पढ़ाऊंगा सब समझ में आ जाएगा। D1 के बाद हम पढ़ेंगे D2। बेटा D1 और D2 में क्या फर्क है, सिर्फ 2 का फर्क है। इसका मतलब D2 क्लास कैसे निकलेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2n/10 हो जाएगा। ये 2n/10 हो गया, तो ये फॉर्मूला में L प्लस n/10 के बदले में 2n/10 हो जाएगा, तो D2 का हो गया। सिमिलरली D3 का क्या होगा, 2 के जगह पर 3 बिठा देंगे। D4 का क्या होगा, 4 बिठा देंगे। तो सारा फॉर्मूला पहले लिख देंगे, फिर हम D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 इजीली कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर D1 का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, बाकी सारा फॉर्मूला आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी देखेंगे D2 क्लास, फिर D2 का वैल्यू, फिर देखेंगे D3 क्लास, फिर D3 का वैल्यू, फिर देखेंगे D4 क्लास, D4 का वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या। तो पहले सारा फॉर्मूला लिख देंगे, फिर हम सारा वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे। बेटा D1 गया था, अभी देखेंगे क्या D2। ओके, तो सेकंड लिखेंगे फाइंडिंग आउट D2।
D2 का कैलकुलेशन। D2 का कैलकुलेशन में फर्स्ट हम क्या करेंगे, D2 क्लास देखेंगे। व्हाट इज D2 क्लास, लिखेंगे D2 क्लास इज इक्वल टू, बेटा n के बदले में कितना हो जाएगा, 2n बाई 10th आइटम, हो गया। फिर 2n बाई 10th आइटम, और इसको कहां पर ढूंढेंगे, फर्स्ट ढूंढेंगे CF, फिर ढूंढेंगे X में, ये तो हमको पता है। नेक्स्ट D2 क्लास के बाद D2 का वैल्यू निकालेंगे। D2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा उसी को देखकर D1 को देखकर तुम लिखो L प्लस, वहां पर था n बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा n बाई 10, यहाँ पर हो जाएगा 2n बाई 10 माइनस CF बाई F इंटू आई। सारा चीज सेम है, लेकिन n के बदले में हम क्या यूज किए, 2n बाई 10। समझ में आ गया, n बाई 10 के बदले में 2n बाई 10 हो गया D2। अगर D2 समझ में आ गया, आपको D3 निकालना आ जाएगा। तो D3 कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लिखो D3 का। फर्स्ट लिखेंगे D3 क्लास निकालेंगे। D3 क्लास कैसे निकलेगा, D3 क्लास इजिकल टू, D2 था 2n बाई 10, D3 हो जाएगा 3n बाई 10th आइटम। और इसको कहां पर ढूंढेंगे, फर्स्ट CF में ढूंढेंगे, देन X में ढूंढेंगे। तो D3 मिल गया क्लास, तो फिर D3 निकाल सकते हैं। D3 निकालने का फॉर्मूला क्या है, अच्छा वही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन 2n के बदले में यहाँ पर 3n हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू L प्लस, फॉर्मूला लिखेंगे क्या हो जाएगा, 3n बाई 10 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा समझ में आ रहा है क्या, D2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, D3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी हम पढ़ेंगे D4 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। D4 तो क्या करेंगे, पहले D4 क्लास निकालेंगे। तो निकालो पहले D4 क्लास, फर्स्ट D4 क्लास, फॉर्मूला क्या होगा, अच्छा D2 का था 2n बाई 10, D3 का हुआ 3n बाई 10, तो D4 का हो जाएगा 4n बाई 10th आइटम। कहां पर ढूंढेंगे, पहले CF में, फिर ढूंढेंगे X में, फिर D4 का वैल्यू निकालेंगे। D4 इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होगा, देखो L प्लस, यहां पर 3n के जगह पर क्या लिखेंगे, 4n, 4n बाई 10 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा समझ में आ रहा है क्या, D4 का फॉर्मूला हो गया, D4 का वैल्यू हो गया, फॉर्मूला हो गया। अभी D5 का वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है, पहले D5 का क्लास निकालेंगे, फिर D5 का वैल्यू निकालेंगे। तो D5 क्लास कैसे निकलेगा, देखकर बोलो, D5 क्लास क्या फॉर्मूला होगा, दैट इज इक्वल टू, सर बोल रहे हैं सर ये हो जाएगा 5n बाई 10th आइटम। इसको पहले ढूंढेंगे CF में, बाद में ढूंढेंगे X में। फिर D5 का वैल्यू कैसे निकलेगा, सर D5 का वैल्यू हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा, लेकिन D2 में 2n था, D3 में 3n था, D4 में 4n था, D5 में सर 5n हो जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा L प्लस 5n बाई 10 माइनस CF बाई F इंटू आई। बेटा D2 समझ में आ रहा है, D3 समझ में आ गया, D4 समझ में आ गया, D5 समझ में आ गया। तो अभी तक हम D1, D2, D3, D4, D5 पढ़ चुके हैं। अभी बाकी 4 डिसाइल बचा हुआ है, D6, D7, D8, D9। आप अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। D6 का वैल्यू कैसे होगा, आप लिखिए, मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड को चेंज करता हूं। हाँ, D6 का कैलकुलेशन लिखे क्या, पहले D6 क्लास लिखिए, फिर निकालिए, फिर D6 का वैल्यू निकालिए। हाँ बेटा, पहले शुरू करेंगे D6 क्लास, तो D6 का कैलकुलेशन कैसे होगा, D6, ओके, D6 का क्या होगा, पहले लिखेंगे D6 क्लास, क्या होगा D6 क्लास, लिखिए D6 क्लास इज इक्वल टू,
फॉर्मूला होगा 6n/10th आइटम। इसको ढूंढेंगे कहां पर? फर्स्ट CF में ढूंढेंगे, नेक्स्ट में X में ढूंढेंगे। D6 क्लास गया, फिर D6 का वैल्यू निकालेंगे। D6 इजिकल टू L प्लस 6n/10 माइनस CF/F इंटू I। बेटा D6 का गया, अगर D6 गया फिर हम निकालेंगे D7। पहले D7 का कैसे निकालते हैं देखो, D7 का पहले D7 क्लास निकालेंगे, फिर D7 वैल्यू निकालेंगे। D7 क्लास लिखो, D7 क्लास इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होगा? D6 को देखकर बोलो, यहां पर 6n/10 था, यहां पर हो जाएगा 7n/10th आइटम। बेटा इसको कहां पर ढूंढेंगे? फर्स्ट ढूंढेंगे CF में, देन ढूंढेंगे X में। फिर हम D7 का फॉर्मूला लिखते हैं। D7 इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होगा? L प्लस, देखकर बोलो, 6n के बदले में क्या हो जाएगा? 7n/10 माइनस CF/F इंटू I। बेटा D7 गया, अभी हम पढ़ेंगे D8। कैसे D8 निकालते हैं देखेंगे। D8, ओके, D8 निकालते हैं पहले। D8 कैसे निकलेगा? D8 क्लास निकलेगा, फिर D8 का वैल्यू निकलेगा। तो D8 क्लास निकालो, तो D8 क्लास इजिकल टू, फॉर्मूला क्या होगा D8 क्लास का? देखकर बोलो, D6 में 6n था, D7 पे 7n था, D8 में हो जाएगा 8n/10th आइटम। इसको कहां पर ढूंढेंगे? फर्स्ट ढूंढेंगे CF में, नेक्स्ट ढूंढेंगे X में। फिर D8 का वैल्यू देखेंगे। D8 इजिकल टू, फॉर्मूला डालेंगे L प्लस 8n/10 माइनस CF/F इंटू I। बेटा D8 गया, फिर देखेंगे D9। D9 कैसे निकालेंगे? उसी तरह से पहले D9 क्लास निकालेंगे, फिर D9 निकालेंगे। तो D9 क्लास लिखिए, पहले D9 क्लास कैसे निकलता है? D9 क्लास इजिकल टू 9n/10th आइटम। इसको कहां ढूंढेंगे? पहले ढूंढेंगे CF में, फिर ढूंढेंगे X में। फिर D9 का वैल्यू निकालेंगे। D9 का वैल्यू फॉर्मूला डालकर निकलेगा L प्लस 9n/10 माइनस CF/F इंटू I। सो सारा फॉर्मूला हो गया। D6 हो गया, D7 हो गया, D8 हो गया, D9 हो गया। पहले तो D1 से D5 तक किए थे, सारा फॉर्मूला याद रहेगा। सारा फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत भी नहीं है, एक फॉर्मूला याद रख लो, वो कैसे बनता है याद रख लो, फिर तुम सारा फॉर्मूला अपने आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अभी अगर आप ये सारा चीज समझ गए, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाएंगे और आज का क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल ऑन कैलकुलेशन ऑफ डेसाइल कंटिन्यूअस सीरीज। लिखिए एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल बोलता है कैलकुलेट 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 D3, D7 and D9 from the following। कुछ फिगर्स दिया हुआ है, उसमें से हमको क्या क्या निकालना है? D3 निकालना है, D7 निकालना है, D9 निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है? हमको X वैल्यूज दे दिया है
और हमको एफ वैल्यू दिया हुआ है। बेटा एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 0 to 10, नेक्स्ट दिया हुआ है 10 to 20, नेक्स्ट दिया हुआ है 20 to 30, नेक्स्ट दिया हुआ है 30 to 40, नेक्स्ट दिया हुआ है 40 to 50, नेक्स्ट दिया हुआ है 50 to 60, नेक्स्ट दिया हुआ है 60 to 70। वैल्यूज आर गिवन। एक्स का फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 और 10 to 20 का दिया हुआ है 5 और इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8 और नेक्स्ट वाला का दिया हुआ है 4, नेक्स्ट वाला का दिया हुआ है 8, नेक्स्ट वाला का दिया हुआ है 8, नेक्स्ट वाला का दिया हुआ है 4। ओके बेटा ये दिया हुआ है, अगर ये दिया हुआ है एन कितना है, एन इजिकल टू, मिला दो इसको, एन कितना होता है 3 5 8 8 8 16 16 4 20 20 8 28 28 8 36 36 4 40, एन दिया हुआ है 40। हमको क्वेश्चन में पूछता है क्या निकालने को, D3 निकालना है, D7 निकालना है, D9 निकालना है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, पहले हमको CF निकाल देना है। व्हाट इज CF? CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बेटा फास्ट का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फास्ट का होगा 3, सेकंड का होगा 3 + 5 8, नेक्स्ट का होगा 8 + 8 16, नेक्स्ट का होगा 16 + 4 20, नेक्स्ट का होगा 20 + 8 28, नेक्स्ट का होगा 28 + 8 36, नेक्स्ट का होगा 36 + 4 40। बेटा CF निकल गया। अगर सब निकल गया, अभी हम धीरे से सब कुछ निकालेंगे। क्या क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे, फिर D7 निकालेंगे, फिर D9 निकालेंगे। तो पहले देखते हैं D3 किसका कैलकुलेशन करेंगे, D3 का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखते हैं D3। बेटा D3 तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, क्या निकालना पड़ेगा, D3 क्लास निकालना पड़ेगा। तो निकालो D3 क्लास। D3 क्लास फॉर्मूला क्या होगा, पढ़ो फॉर्मूला देखकर बोलो। D3 क्लास विल बी 3n by 10th आइटम, दैट इज इक्वल टू 3 into n। बेटा n कितना है, n है सर 40, n है 40, 3 into 40 by 10। तो इसको कर दो, कितना होता है 12th आइटम। 12 नंबर वाला आइटम क्या है, D3 क्लास है। तो D3 क्लास कितना आता है, तो D3 क्लास इज इक्वल टू 12 नंबर वाला आइटम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, पहले CF में ढूंढेंगे, फिर कॉरेस्पॉन्डिंग X में ढूंढेंगे। बेटा 3 में 12 है क्या, नहीं है। 8 में 12 है क्या, नहीं है। 16 में 12 है क्या, हाँ सर 16 में है। तो दिस इज आवर व्हिच क्लास, ये हमारा D3 क्लास है। सो D3 क्लास इज इक्वल टू 20 to 30। लेकिन D3 कितना है, इसको D3 क्लास तो नहीं मिल गया 20 से 30, हमको पता चल गया D3 का वैल्यू 20 से 30 के बीच में है, लेकिन एक्चुअली कितना है उसको निकालने के लिए फॉर्मूला डालना पड़ेगा। तो D3 का फॉर्मूला क्या होगा, देयरफॉर D3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, L प्लस, फॉर्मूला लिखो, 3n by 10 minus CF by F into I, that is equal to L। अच्छा 20 to 30 का L कितना सर 20 प्लस 3n by 10। बेटा 3n by 10 ऊपर तो निकाले हैं, कितना आया है 12 आया है सर, माइनस CF। CF का मतलब क्या है, CF बोलता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, किसका, जो D3 क्लास है या डेसाइल क्लास है उसका ऊपर वाला क्लास का। D3 क्लास तो ये है, उसका ऊपर वाला क्लास ये वाला है। तो इसका CF सर 8 है। तो दिस इज आवर CF, 8 हमारा CF है। तो -8 डिवाइड बाई F, F मतलब उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी। 20 to 30 का क्लास है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है सर, इसका फ्रीक्वेंसी भी 8 है। तो 8 by 8 इंटू I का मतलब क्लास इंटरवल।
किसका? D3 क्लास का। D3 क्लास का 20 से 30 का इंटरवल कितना है सर? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 10/10। कितना आ रहा है? दैट इज इक्वल टू 20 प्लस ये हो गया 12 माइनस 8। 12 माइनस 8 कितना होता है? 4/8 इंटू 10। बेटा 4/8 तो 1/2 है, तो दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 4/8 मतलब इसको काट लो 2 हो गया, इसको काट लो 5 हो गया, 20 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 25। बेटा D3 का वैल्यू हमारा हमको मिल गया कितना? 25। क्लियर? D3 का वैल्यू मेरे को मिल गया कितना? 25। द वैल्यू ऑफ D3 इज इक्वल टू 25। एक बार D3 का वैल्यू मिल गया, मैं अभी निकाल सकता हूं किसका? D7 का वैल्यू। फिर हम निकालेंगे D9 का वैल्यू। तो देखते हैं पहले D7 का वैल्यू। D7 कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, मैं थोड़ा बोर्ड को ऊपर उठा देता हूं। ओके, तो अभी D7 देखेंगे। ठीक है, D7 का वैल्यू कैसे? पहले D7 कैसे क्या करेंगे? D7 क्लास निकालेंगे, फिर D7 क्लास निकालकर D7 का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मैं इस साइड में निकाल देता हूं D7। ओके, तो लिखते हैं पहले D7 क्लास। D7 क्लास कितना होगा? D7 क्लास इजिकल टू, जैसे D3 क्लास निकाले थे 3n/10, यहां पर होगा सर 7n/10th आइटम। दैट इज इक्वल टू 7n/10। 7 इंटू n कितना? n सर था 40, n था 40। 7n/10 हो गया 10, दैट इज इक्वल टू 28th आइटम। सर 28 नंबर वाला आइटम, 28 नंबर ढूंढेंगे, कहां पर ढूंढेंगे? पहले CF में ढूंढेंगे, फिर जाकर क्या हो जाएगा? हमको मिल जाएगा। तो D7 क्लास मिल गया हमको कितना? 28 नंबर वाला आइटम ढूंढेंगे। 3 में 28 है क्या? नहीं। 8 में 28 है क्या? नहीं। तो 16 में 28 है क्या? नहीं। 20 में 28 है क्या? नहीं। 28 में 28 है। समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर 28 में 28 है, तो देखते हैं 28 में है तो क्या हो जाएगा? 28 के सामने जो लिखा हुआ है वही हो जाएगा। 28 के सामने कौन सा लिखा हुआ है? 28 के सामने सर है ये 40 से 50। सो दिस विल बी आवर न्यू व्हिच आइटम? डी कौन सा? 7। सो दिस इज आवर D7। सो D7 क्लास मेरे को मिल गया 40 से 50। तो D7 क्लास कितना है? 40 to 50। तो D7 क्लास मेरे को मिल गया 40 to 50। अगर D7 क्लास मिल गया, अभी मैं D7 निकालने की कोशिश करता हूं। D7 इजिकल टू फॉर्मूला डालूंगा L प्लस 7n/10 माइनस CF/F इंटू I। व्हाट इज L? 40 to 50 का मतलब हो गया 40 प्लस, अच्छा 7n/10। 7n/10 ऊपर निकाले हैं, कितना आया है? 28 माइनस CF। बहुत इंपॉर्टेंट, CF हमेशा एबव वाला क्लास का होता है। बेटा देखो D7 का क्लास है 40 to 50, उसका एबव वाला क्लास ये है, तो ये उसका है, इसका है मतलब ये कितना है? ये वाला आइटम है CF। समझ में आ रहा है क्या? ये वाला आइटम CF है, ये वाला आइटम मतलब कितना? 20। तो 28 माइनस 20 बाई एफ। एफ मतलब उसका फ्रीक्वेंसी, उसका फ्रीक्वेंसी तो दिया हुआ है 8/8 इंटू आई। आई कितना है बेटा? आई है कितना? आई है इन दोनों के बीच में गैप, 40 और 50 के बीच में गैप 10। तो कितना आता है? ये वैल्यू आता है कितना? हिसाब कर लो। ये हो गया 40, दैट इज इक्वल टू, थोड़ा उठा लेता हूं मैं। दैट इज इक्वल टू, वैल्यू निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू
40 प्लस ये हो गया कितना 8/8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 40 प्लस 10 कितना हो गया 50। तो मेरे को वैल्यू मिल गया डी कितना 7 का वैल्यू कितना आ रहा है 50। बेटा D7 मिल गया। अभी मेरे को और एक चीज निकालना है। कौन सा चीज निकालना है? D7 तो निकल गया, अभी मेरे को निकालना है D9। बेटा समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन दिया हुआ है D3 निकालो, D7 निकालो, D9, तो कैलकुलेशन ऑफ D9। D9 देखते हैं। D9 कैसे निकलेगा? पहले D9 क्लास निकालेंगे, तो निकालो D9 क्लास। D9 क्लास कैसे होगा? D9 क्लास दैट इज इक्वल टू सर ये D7 क्लास था 7n/10, ये हो जाएगा 9n/10th आइटम। ओके 9n/10 कितना होता है? 9n/10 देखो कितना होता है बेटा 9n/10th आइटम दैट इज इक्वल टू 9 इंटू एन कितना है बेटा? एन कितना है देखो, एन है सर, हाँ एन है 40/10 कितना आता है 36 आइटम। 36 नंबर वाला आइटम क्या है? D9 है। अभी ढूंढेंगे 36 नंबर वाला आइटम कौन सा है। ओके 36 नंबर वाला आइटम कौन सा है वो ढूंढेंगे और हमको मिल जाएगा। ओके देखो 36 नंबर वाला आइटम कौन सा है ढूंढो। अच्छा 8 के अंदर 36 है क्या? नहीं। 16 के अंदर नहीं। 20 के अंदर 36 है क्या? नहीं। 28 के अंदर 36 है क्या? नहीं सर। 36 के अंदर है, तो दिस इज आवर क्लास। कौन सा क्लास है सर? दिस इज ये वाला क्लास है हमारा 50 to 60। दिस इज आवर न्यू व्हिच क्लास? डी, ये है D9 क्लास। ऊपर वाला था D7। D3 निकल गया है, D7 निकल गया है, अभी D9 कैलकुलेट करते हैं। तो D9 वाला क्लास कितना आया? 50 to 60। तो लिखेंगे D9 क्लास इज इक्वल टू 50 to 60। D9 का वैल्यू डालेंगे, D9 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? L प्लस फॉर्मूला होगा कितना 7n/10 था, ये हो जाएगा कितना 9n/10 माइनस CF/F इंटू I। दिस इज आवर फॉर्मूला। बेटा थोड़ा और ऊपर उठा देता हूं, तो वैल्यू निकालेंगे दैट इज इक्वल टू एल। एल का मतलब क्या है? लोअर लिमिट। बेटा लोअर लिमिट किसका? लोअर लिमिट किसका? 50 to 60 इज और क्लास इंटरवल। तो 50 to 60 का हम निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना 50, तो ये हो जाएगा 50 प्लस, अच्छा 9n/10। 9n/10 तो ऊपर निकालेंगे, 9n/10 कितना आया है 36, दैट इज इक्वल टू प्लस 36 माइनस CF। बहुत इंपॉर्टेंट है CF, मतलब जो हमारा क्लास है, कौन सा क्लास है D9, उसका ऊपर वाला क्लास का CF। उसका ऊपर वाला क्लास का CF देखो ये है कितना है 28 है। समझ में आ रहा है क्या? -28/F। F कितना? उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी। बेटा 50 to 60 हमारा क्लास है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 8/8 इंटू आई मतलब कॉमन फिगर और गैप बिटवीन 50 एंड 60, तो कितना हो गया इंटू 10 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 50 प्लस ये हो गया कितना बेटा 36 माइनस 28 8/8 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 60। बेटा आंसर आ गया कितना 60। समझ में आ रहा है क्या? तो हमको तीनों चीज का आंसर मिल गया। क्या क्या मिला? D3 मिला, D3
हमारा आंसर आया D3 कितना, D3 आया आपका 25। फिर आपको D7 मिला, D7 कितना मिला 50, और लास्ट में D9 कैलकुलेट कर दिए, D9 का वैल्यू मिल गया, D9 का वैल्यू कितना आया 60। ओके, इस टाइप का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आ सकता है। आपको क्या करना है, तीनों चीज निकालना है, D3, D7, D9। अगर क्वेश्चन में D5 देता, D5 निकाल लेते। अगर क्वेश्चन में D4 देता, इसी फॉर्मूला डालकर हम D4 का वैल्यू भी निकाल सकते थे। ठीक है, सो विथ दिस वी हैव कंप्लीटेड हाउ टू कंप्यूट व्हाट इज द डेसाइल ऑफ ए कंटिन्यूअस सीरीज। अभी हम कुछ स्पेशल पॉइंट टू बी कंसीडर्ड व्हाइल कैलकुलेटिंग द डेसाइल इन कंटिन्यूअस सीरीज, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग करो स्पेशल पॉइंट लिखो, हेडिंग करो स्पेशल पॉइंट लिखो स्पेशल पॉइंट टू बी कंसीडर्ड while calculating decile in a continuous series। अगर एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, उसका डेसाइल निकालने के लिए कौन कौन सा स्पेशल पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको लिखेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट है, अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या है, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, इस तरह का फिगर है, मतलब उसके बीच में कुछ गैप है। अगर इंक्लूसिव सीरीज है, हमको उसको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है, बाय अप्लाइंग गैप बाय 2 फॉर्मूला। तो लिखेंगे इफ इंक्लूसिव सीरीज within bracket 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, याद हो जाएगा, इज गिवन कमा वी हैव टू कन्वर्ट इट टू exclusive one by applying which formula, गैप बाई 2 फॉर्मूला। गैप बाई 2 फॉर्मूला में दोनों साइड में फर्स्ट साइड से लेस करते हैं, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ऐड कर देते हैं, और वो क्या हो जाता है, एक्सक्लूसिव बन जाता है। समझ में आ गया। अगर इंक्लूसिव सीरीज दिया हुआ है, उसको पहले एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना है, फिर जाकर क्या निकालना है, डेसाइल निकालना है। समझ में आ रहा है क्या। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, अच्छा, नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर ओपन एंडेड सीरीज ऑन इक्वल क्लास इंटरवल। क्वेश्चन में अगर ऑन इक्वल क्लास इंटरवल देता है या ओपन एंडेड सीरीज देता है, हमको क्या करना है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, जैसे इजीली निकालते हैं उसी तरह से निकालेंगे। तो लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर, कौन कौन सा, फर्स्ट ऑन इक्वल क्लास इंटरवल। बेटा व्हाट इज ऑन इक्वल क्लास इंटरवल, 0 to 10, 10 to 30, 30 to 60, मतलब गैप क्या होगा, गैप नॉट इक्वल, दैट इज नोन एज ऑन इक्वल क्लास इंटरवल। उसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। सेकंड, किसमें स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ओपन एंडेड सीरीज।
ओपन एंडेड सीरीज अगर देगा उसमें भी हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रहा है क्या? थर्ड पॉइंट, अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज देता है, व्हाट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज? लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज देता है। सारा आइटम लेस देन देगा या सारा आइटम मोर देन देगा, वहां पर हमको पहले एक्स और एफ कॉमन सेंस लगाकर निकालना है, फिर डेसाइल निकालना है। समझ में आ गया? तो लिखेंगे इफ cumulative frequency distribution is given. What is cumulative frequency distribution? ब्रैकेट में लिखेंगे लेस देन सीरीज और मोर देन सीरीज। अगर लेस देन सीरीज दिया है या मोर देन सीरीज दिया है तो क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट एक्स and f first by applying common sense. कॉमन सेंस अप्लाई करके x और f को निकालना है, फिर डेसाइल निकालना है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो 3 इंपोर्टेंट पॉइंट्स गया। 4 इंपोर्टेंट पॉइंट। डेसाइल इज ए पोजिशनल एवरेज। अगर डेसाइल पोजिशनल एवरेज है तो अगर डाटा अरेंज नहीं हुआ है तो पहले अरेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? फोर्थ पॉइंट, इफ डाटाज आर नॉट अरेंज्ड, if datas are not arranged, arrange नहीं है तो we have to arrange it either in ascending form or in descending form. We have to arrange in ascending form or descending form. ये सारा काम करने के बाद ही हमको क्या करना पड़ेगा? हम क्या निकाल सकते हैं? डेसाइल निकाल सकते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स पढ़ाया? 4 इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगर इंक्लूसिव सीरीज है उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट पढ़ाया, अगर कौन सा सीरीज है? अनइक्वल सीरीज है, ओपन एंडेड सीरीज है, नॉर्मली जैसे निकालते हैं निकालेंगे, इसमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लेस देन सीरीज है, मोर देन सीरीज है, पहले हमको कॉमन सेंस डालकर एक्स और एफ निकालना है। लास्ट में हम क्या पढ़े? अगर डाटा अरेंज नहीं हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसको पहले अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे? आइदर असेंडिंग फॉर्म में या नहीं तो डिसेंडिंग फॉर्म में। So if you obey all these things, then only you can find out median in case of a which series? Continuous series. Continuous series में आप median easily निकाल सकते हैं। With this we conclude our session. आज हम पढ़े median कैसे निकाल सकते हैं। कौन सा सीरीज में? Continuous series में कैसे median निकाल सकते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़े। ओके, और मीडियन नहीं, डेसाइल कैसे निकाल सकते हैं उसके बारे में पढ़े। सो एट द एंड लेट मी फर्स्ट टेल and request you, if you have not subscribed my channel, you can subscribe my YouTube channel. My YouTube channel is Commerce Forum. Commerce Forum. Once you subscribe it, kindly press which icon? Bell icon, so that you will get the latest videos as and when I upload it in YouTube. And if you have any doubt, you can email me in my email ID. My email ID is biswamishra, BISWOMISHRA @gmail.com. Thank you. Thank you for watching my channel.
Thank you. Have a nice day. Thank you all.